Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that as a policy, we don't address company or stock specific queries. You can call us on 2331 4444, 23717106, and our third dedicated line is 23421050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. Good evening, Manoj. स्वागत, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मार्केट मंत्र में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज शनिवार है और आज के दिन कारोबारी खबरों के साथ आपसे सीधी बातचीत हम किया करते हैं। आप भी हमें सीधा फोन कर सकते हैं और हमसे अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको उपलब्ध नहीं करा सकेंगे। हमसे खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों की वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं एस रंगाभाष्यम। Thank you, Manoj. The top stories. Domestic stocks plunged more than 2% during the week ended yesterday. Sensex closes below 59,500 mark, while the Nifty finishes near 17,600 level. And US stocks witness modest gains. कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार में हुई गिरावट, प्रमुख सूचकांक 2% से अधिक नीचे आए। सेंसेक्स 59,500 और निफ्टी 17,600 के नजदीक हुआ बंद। और अमेरिकी शेयर बाजार में निवेशकों ने की लिवाली, प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ हुए बंद। कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार में 2% से अधिक की गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 59,500 के नीचे आ गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 17,600 के नजदीक आकर बंद हुआ। बुधवार को पेश होने वाले बजट से पूर्व सावधानी की धारणा और पश्चिमी देशों में मंदी की आशंका शेयर बाजार में देखी गई, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की चौतरफा बिकवाली हुई। इसके अलावा अमेरिका स्थित एक निवेश शोध कंपनी द्वारा अडानी समूह से संबंधित कंपनियों के बारे में अपनी राय व्यक्त करने संबंधी रिपोर्ट का भी निवेशकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,291 अंक यानी 2.18% नुकसान के साथ 59,331 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी साप्ताहिक आधार पर 2.4% यानी 423 अंक घाटे के साथ 17,604 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों पर ध्यान दें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 2.4% नीचे आ गया, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.64% की गिरावट हुई। Right. Let's start taking phone calls. And joining us very first this evening is R.S. Dahiya from Delhi. Good evening, Mr. Dahiya, and welcome to Market Mantra. Sir, namaskar. Yeah, go ahead, put your question. Sir, my question to the expert is that as you have just brought out in the headlines, there is a very drastic, heavy fall in the market, and one of the major reasons is that big business house or many companies of that group shares have fallen drastically. What exactly has been reported by the U.S. reporter, and how a common investor can handle this situation, and what is the truth in that report? Please advise. Right, Mr. Dahiya.
Well, there has been a report made by a research company which talks about how different accounting measures have been dealt in a very different manner by the company, and they have indicated that there is a possibility of fraud and other activities by the company, which obviously has affected the overall transparency and accountability of the company's financial reporting, which has finally affected the stock share prices. When we talk about research reports, it is important to understand that the research reports are based upon a certain set of information, which they indicate that some of the information was not given by the company. However, based upon the information that was available to them, they have identified that there have been certain things which are not in line with the normal regular practices that are followed. So this has been the effect. Usually all these reports and researches are done using information which is already available in public domain, isn't it? True. A lot of things are available in the public domain, especially the financial information that is there. But when we're talking about this report, they usually are talking about a forensic audit. And there are certain questions which they had asked the company which had not been answered, is also something that one needs to look into account when one is considering the report. However, many of the questions were answered and are available publicly on the basis of which they have, given the report. That's right. आइए चलें गुरुग्राम से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर जगमोहन जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं जगमोहन प्रजापति गुरुग्राम से बोल रहा हूँ। जी, स्वागत आपका, सवाल पूछें। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम, जैसे कि मैं ब्लाइंड और मुझे बैंक वाले लोन नहीं देते, कहते हैं कि आपको आरटीआई भरनी पड़ेगी और वो और भरते नहीं है, इसलिए आपको लोन नहीं मिलेगा। और मेरे पास अपनी एफडीआं हैं, 25 लाख की मेरे पास अपनी एफडी है, तो कहते हैं कि इसके ऊपर भी आपको लोन मिल सकता है। तो जैसे 7% मुझे दे रहे हैं तो मुझसे वो 8% का लेंगे, मतलब मुझे 1% मुझे देना पड़ेगा। मैं आपकी सलाह ये चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि मैं अपनी एफडी पे लोन ले सकता हूँ, बेनिफिट रहेगा कि नहीं, ये मैं कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि मैं लोन लेना चाहता हूँ पर लोन बैंक मुझे नहीं दे पा। जी देखिए, जब भी बैंक लोन देता है तो वो ये देखता है कि आपकी कितनी आय है और आपके पास उस आय के द्वारा बैंक को इंटरेस्ट देने के लिए क्या माध्यम रहता है। तो जरूरी बात है वो आपकी आय आंकते हैं, और दूसरा वो आंकते हैं कि आपके पास क्या कोलैटरल है या क्या चीज है जिसके ऊपर वो निर्भर कर सकते हैं कि कल को आप अगर डिफॉल्ट करें तो वो उस पैसे को रिकवर कर सकें आपके उस कोलैटरल से, चाहे आप वो घर रखें या एफडी रखें या कोई और जैसे गोल्ड है या कोई और चीज रखें। उसके जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें वो आपसे इनकम्स और बहुत सारी चीजें पूछते हैं। जहां पे एफडी पे लोन है, क्योंकि एफडी उन्हीं के पास है या कहीं और बनी होती है, उसको आप एज कोलैटरल रखते हैं, तो जितनी एफडी पे रेट मिलता है उसके 1% ऊपर ही ज्यादातर बैंक आपको लोन ग्रांट करते हैं। तो इस माध्यम से आप बैंक से लोन उठा सकते हैं अगर आपको यकीन है कि आप उस पैसे को उस दर पे वापस कर सकेंगे। Right. And let's move on and take our next caller. We have Jitendra joining us from Jaipur. Good evening, Jitendra, and welcome to Market Mantra. हाँ, थैंक यू। अच्छा मैडम, ये बोला था कि अभी जो मार्केट क्रैश हुआ है, कल थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो उसमें खबर आ रहा है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप का उसमें मतलब कुछ ऐसा रहता है, तो क्या ये न्यूज सही है या आप इसको कैसे देखते हैं? हम तो देखते हैं कि अगर ऐसा है तो बहुत गंभीर बात है, आप बताएं, प्रकाश डालें। जी देखिए, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार कुछ अकाउंटिंग की वो हैं, उन्होंने प्रैक्टिसेस फॉलो की हैं, वो ठीक नहीं है, और जिसके हिसाब से जो रिपोर्टिंग है वो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल नहीं है जितनी वो होनी चाहिए, जिसका सीधा असर इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पे पड़ा है और जिसकी वजह से उनके जो शेयर्स हैं वो बिके हैं मार्केट के अंदर। रिपोर्ट क्योंकि माना जाता है जिस रिसर्च ग्रुप से आई है उन्होंने पहले भी ऐसे
जो है रिपोर्ट्स निकाली हैं और उसकी वजह से जिन जिन कंपनीज पे वो निकालते हैं उसमें मार्केट करेक्शंस देखी जाती हैं कंपनीज के अंदर, और ये वही करेक्शन है। अब ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो जो तथ्य उन्होंने रखे हैं उसको जो अदानी ग्रुप है वो किस तरीके से काउंटर करता है और उसके लिए क्या अपने क्या रिस्पांस देता है, उसी पे इन्वेस्टर्स अपना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। And Yamini, talking about our earlier caller, his query whether to take a loan on FD or not. At times, people are confused. They also have some money, which could be a fixed deposit or a term deposit. They think that whether it would be prudent to encash it and use the money, or take a loan afresh, or to take a loan against the FDs, because this interest rate differential would always be there. So maybe in this particular case he wanted to know whether he should use his own money or take a loan and then spend. जी देखिए, आप जब लोन लेते हैं तो आपको वो इंटरेस्ट देना होता है, तो आपके पास उतनी आय होनी चाहिए कि आप वो इंटरेस्ट दे सके। अपना पैसा तब इस्तेमाल करें जब आपको लगता है कि लोन नहीं मिल रहा। यूजुअली लोन के ऊपर जब आप लेते हैं तब आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर आप घर का लोन लेते हैं तो आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाती है। अगर आप कंपनी के लिए भी लोन लेते हैं तो जो उस पे इंटरेस्ट पे करते हैं वो डिडक्टेबल होती है। पर अगर आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिल रही टैक्स से, तो अपना पैसा लगाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको उसके अंदर कुछ पैसा ब्याज के दर पे नहीं देना पड़ता। राइट। दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं प्रकाश। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछे। सर, मैं आपको करना चाहूंगा, मेरा नाम भारत भूषण है, नई दिल्ली से बात कर रहा हूं। अच्छा, भारत भूषण जी, मेरे ख्याल से दोनों ही लाइन कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, भारत भूषण जी, पहले आप ही पूछ लीजिए सवाल। सर, धन्यवाद सर जी। सभी को नमस्कार, मैडम को भी नमस्कार है। जी नमस्कार। मैडम, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मान लीजिए कंपनियां कई सारे होती है, जो कंपनी पहले मर्ज करती है अपने। हेलो भारत भूषण जी। हेलो, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रहा। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, ये मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार, यामिनी मैडम को नमस्कार। जी नमस्कार। अपना सवाल पूछिए। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आईपीओ और एफपीओ में क्या डिफरेंस है? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन ऑफर जो है वो आपका एफपीओ होता है। जब आप पहली बार मार्केट में आते हैं और अपने शेयर्स इशू करते हैं तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। लेकिन जब आपने पहले से अपने जो शेयर्स हैं वो ऑफर कर रखे हैं, उसके बाद जो आप शेयर्स ऑफर करते हैं उन्हें एफपीओ कहते हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर अशोक कुमार। अशोक जी, स्वागत आपका, सवाल पूछें। जी नमस्कार। नमस्ते। जैसे शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, हमेशा ये तो लगा रहता है, लेकिन अगर कोई निवेशक इसमें अपना मतलब वो पैसा लगाना चाहे तो किन बातों का ध्यान रखना पहले जरूरी होता है, उसके बाद निवेश करें? जी देखिए, पूरी तरीके से पहले तो स्टॉक मार्केट की जानकारी जानें। दूसरी बात, आप किस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं वो जानें, और जिस भी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं उसके फंडामेंटल्स को क्लियरली पढ़ें कि उनका क्या बिजनेस है, उस बिजनेस मॉडल के पीछे कौन है, उसकी मैनेजमेंट क्या है, आगे की ग्रोथ रेट क्या है। एनुअल रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ करके उसके जो फाइनेंशियल्स हैं उसको समझने की कोशिश करें कि उसकी डेट इक्विटी कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है, और सारी रेशियोज करें। और जो उसके प्राइस वेरिएशंस हैं उसके टेक्निकल चार्ट्स को देख करके फिर निवेश करें। बहुत सारे प्रकाशन आते हैं और मार्केट मंत्रा जैसे अच्छे प्रोग्राम हैं जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि मार्केट्स की क्या स्थिति है, इकोनॉमी की क्या स्थिति है, और आप किन सेक्टर्स में निवेश कर सकते हैं। Right, let's move on and take our next caller. We have Sandeep joining us from Delhi. Good evening, Sandeep. And what's it that you'd like to talk about? I just wanted to know how to invest in a debt fund. जी, आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अब अवेलेबल हैं। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिटेल के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरबीआई बॉन्ड्स में आप निवेश कर सकते हैं किसी भी बैंक के द्वारा। आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी निवेश कर सकते हैं जो सिर्फ डेट फंड्स में निवेश करते हैं। डेट और इक्विटी में भी निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा।
आइए चलें कोलकाता। हमारे नियमित श्रोता अतनु साहा जी हैं। स्वागत आपका अतनु। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। क्वेश्चन इज सर, व्हाट इज पब्लिक पार्टिसिपेशन PPP मॉडल? डू इट इन्फ्लुएंस इक्विटी ग्रोथ टू डेवलप इंडिया? थैंक यू जी। पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट प्लेयर्स ज्वाइन इन हैंड्स and then they bring about enterprises or different organizational setups primarily to provide goods and services in the economy. It is primarily to promote private participation as well as public participation in activities, ensuring that the private is supported by the public and there is confidence as well as capital of the private players used in the economic activities and economic growth of the economy. And let's move on and take our next caller. We have Anil joining us from Ghaziabad in Uttar Pradesh. Good evening, Anil. Good evening, sir. And what's your question? हाँ सर, मैं आपके माध्यम से करेक्ट करना चाहता हूँ। एक सज्जन ने पूछा जो ब्लाइंड है कि लोन अगेंस्ट FD भी स्टेट बैंक की लोन अगेंस्ट द FD इज द बेस्ट लोन। उसमें ना कोई प्रोसेसिंग चार्ज होता है ना कुछ होता है। यू कैन रीपे आफ्टर विद इन 3 years। अगर आप रीपे भी नहीं करते तो आपकी FD मर्ज हो जाती है। जी जी। डिफरेंस रहता है। if he is capable by earning from his business, he can refund, then it is the best। और FD में भी लोन हमेशा मिलता रहता है। Any nationalized bank की loan against FD is the one of the best options. Yeah, good, Mr. Anil. So that's your opinion. That is fine. Would you like to add something to it? जी, जैसे मैंने पहले कहा कि FD में आप लोन तभी उठाएं जब आपके पास आय हो उसके इंटरेस्ट पे करने की। अगर नहीं है तो आप अपने पैसे को इस्तेमाल करें और उसे यूज करें। जब भी आप लोन उठाते हैं तो जो क्योंकि लोन को माना जाता है कि एक अच्छा रहता है, खास तौर पे जब आपकी इनकम ज्यादा है और आपको टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, जैसे हाउसिंग में है या आपके कॉर्पोरेट्स में है जिसमें इंटरेस्ट डिडक्टेबल होता है। अगर आय नहीं है और अगर आपको इंटरेस्ट डिडक्शंस नहीं मिल रहे तो लोन आपके ऊपर एक भार की तरह भी पड़ सकता है, क्योंकि आगे चल करके जो भी आप कोलैटरल देंगे या आप अपनी FD देंगे वो उसमें इस्तेमाल हो जाएगी और आपके लिए दिक्कत हो सकती है। दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं JS सलूजा। स्वागत आपका सलूजा साहब, सवाल पूछें। Good evening to Yamini ma'am and the entire. Good evening. My question is that I want your views for 2-3 years on following 3 sectors. First, chemical sector. Second, footwear sector. And third, the PSU banks. So, has the time come now to buy aggressively or just holding it is enough, or should we just go and liquidate? Thank you. Well, chemical sector has been doing well. So, properly staying invested in the chemical sector would pay. As far as the footwear market is concerned, it is dependent upon which particular segment one is investing in, and also it is a lot competitive at the moment. Again, the right company would be the key here in the footwear industry. As for the PSU sector is concerned, when one looks at the public sector undertakings, the public sector undertakings are good investments, primarily if you're looking in for dividends. Also, if you want to look in for a possible capital appreciation at the time of disinvestments, they can prove to be good. Much trading is less observed in the PSU sector, so too much gain over there is not usually visible. But PSU sector is a good sector because most of the companies are being restructured, and there is a lot that the government is doing in bringing about capital infusion in most of the sectors to modernize them. Right, let's move on and take our next caller. We have Rekha joining us from Delhi. Good evening, Rekha. And what's it that you'd like to talk about? Yeah, very good evening to whole Market Mantra team. Actually, I want to add to the question asked by the earlier audience. Actually, I wanted to invest in that fund of government. You can throw some light on that. How can I invest in government's, debt funds? जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं और RBI बॉन्ड्स होते हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं एक बैंक के द्वारा, जैसे SBI है या और बैंक्स हैं वो ऑफर करते हैं, आप उनमें निवेश कर सकते हैं।
आप जो है डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और उनके द्वारा, बैंकों के द्वारा आप निवेश कर सकते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर आ जुड़े हैं इस बीच भारत भूषण। फिर से स्वागत है आपका। भारत भूषण जी, सवाल पूछिए। सर नमस्कार सभी को। नमस्कार। यामिनी मैडम को भी नमस्कार है जी। नमस्कार मैडम, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी अपने आप को मर्ज करती बिजनेस से डीमर्ज कर लेती है, तो क्या कारण होता है डीमर्ज करने का, फिर क्या कारण होता है इसको मर्ज कर लिया जाता है। दूसरी, जो पेरेंट कंपनी होती है मैम, तो वो अपने सब्सिडरी, अगर कोई कंपनी है उनकी, तो क्या पेरेंट कंपनी की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपनी सब्सिडरी कंपनी अगर किसी वजह से डिफॉल्ट कर जाती है तो उनकी देनदारी के लिए उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। धन्यवाद जी। देखिए, कंपनी में मर्जर्स और डीमर्जर्स बहुत सारी कंसिडरेशंस को लेकर के होते हैं। जैसे आप कोई अपना आगे की तरफ बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं या जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहते हैं या बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहते हैं या कॉन्ग्लोमरेट बनाना चाहते हैं। अगर आप जैसे एजुकेशन में हायर एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं तो आप स्कूल एजुकेशन में चले जाएं, और अगर आप जो है स्कूल एजुकेशन में जा रहे हैं तो आप ऐसी वोकेशनल एजुकेशन में चले जाएं। तो इसलिए मर्जर्स हो सकते हैं जब आप बिजनेसेस में जो है उसके आगे के स्तर को देखें या उसके पीछे के स्तर को देखें। डीमर्ज इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभार कुछ कंपनीज में मुनाफा नहीं होता और उनको बेचना चाहते हैं, या आप सोचते हैं कि उस कंपनी को अलग से करके वो शायद बेहतर परफॉर्म कर सके। जहां तक आपने बात की सब्सिडरी और पेरेंट कंपनी की, जब यूजुअली सब्सिडरी कंपनी होती है तो पेरेंट कंपनी उसको सपोर्ट करती है, पर क्योंकि सब्सिडरी कंपनी की अपनी आइडेंटिटी होती है, अपने शेयर होल्डर्स होते हैं और अपना प्रॉफिट होता है, तो वो ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पेरेंट कंपनी यूजुअली लोन के द्वारा या अपने फंड्स के द्वारा, कैपिटल इंफ्यूजन के द्वारा या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के द्वारा या नेटवर्क के द्वारा सब्सिडरी कंपनी को उतना ही सपोर्ट कर सकती है जितना उसकी आइडेंटिटी उसे सपोर्ट करने के लिए देती है। Well, listeners, you are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra on All India Radio. And just to remind our listeners who have joined in later on, our phone numbers to talk to our expert are 2331 4444, 2371 7106, and our third line is 23421050. And as always, if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. And in the studio we have our expert Dr. Yamini Agarwal to answer all your queries, questions and doubts related to the stock markets, business or the economy. And before we move on and take more calls, let's take a look at some of the other news items. Reserve Bank of India's Governor Shaktikant Das has said that despite a hostile and uncertain international environment, India's economy continues to remain resilient, drawing strength from its macroeconomic fundamentals. Addressing a conference in Dubai yesterday, Mr. Das said India's financial system remains robust and stable, with bank credit growing in double digits. Talking about inflation, he said that most recent data on growth, inflation and currency volatility show that the worst for the financial markets and inflation is behind us. On the rupee's depreciation, Mr. Das said that the rupee fell during the pandemic days and last year in view of the Ukraine war, but it outperformed the currencies of most advanced and many emerging market economies. Stating that India is widely seen as a bright spot in an otherwise gloomy world, the Reserve Bank Governor said Indian financial markets have been driven by two key objectives: stability and development. Very briefly, Yamini, what the Governor is saying is actually correct, isn't it? The two objectives have been very broadly met, like stability and development. But overall, the framework of the economy has been to provide the necessary support that has been needed both during the pandemic period and the post-pandemic period. If you look at all the schemes that the government brought during the pandemic period from Atmanirbhar Abhiyan 1, 2 and 3, also the budgetary supports that have been offered in the past have been continuously bringing about a huge amount of investment in the economy. Besides, the reform of financial inclusion, digitalization, social inclusion have been constantly giving the impetus to growth.
taking also care of the structural reforms that in the economy that have also been supporting the labor force as well as especially the farmers, the MSMEs and the women. And also the sector-specific, PLI schemes. The PLI schemes, especially for the manufacturing, primarily to ensure that it meets the targeted GDP growth that the economy desires and to put it in a developed state, like one had, brought about the digital currency in India, as well as 5G. Similarly, a large number of schemes which support healthcare, Ayushman Bharat, PM Jan Dhan Yojana, and then that supports social inclusion and social support to people like PM Samman Kisan Yojana, so Ujjwala Yojana, or the bringing about toilets. So these have been very supportive in the economic growth and economic development, not only growth but also development, rationalization of taxes for the MSMEs as well as for people by bringing about a separate tax structure. So they have been putting a positive impetus in the economy. हमारे साथ दो श्रोता इस बीच जुड़ चुके हैं. सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे दिल्ली से अरविंद को. अरविंद जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए. जी, मार्केट मंत्रा टीम को बहुत बहुत नमस्कार. मेरा ये क्वेश्चन है कि पिछले काफी दिनों से ये देखा जा रहा है कि मार्केट फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाले जा रहे हैं और इसकी वजह से मार्केट इम्प्रूव नहीं कर रहा अपने देश के. और मुझे सबसे बड़ा कारण ये लगता है कि वहां के मार्केट करीब करीब पिछले साल में 20% डाउन हुए हैं. तो उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि यहाँ से पैसा निकालकर वो वहां के मार्केट्स में पैसा लगाएं. क्या मेरे विचार से आप लोग सहमत हैं क्या, या आप मेरा मार्गदर्शन करें इस बारे में? जी देखिए, बाहर के देशों में आप खासतौर पे यूएस पे देखें तो जो उनका फेडरल रिजर्व है, जो सेंट्रल बैंक है, वो कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता जा रहा है ताकि वो अपनी इन्फ्लेशन को काबू कर सके. क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है और जो एक रिस्क फ्री रिटर्न मिलना होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, उसकी वजह से यूएस ट्रेजरीज में काफी हद तक निवेश जा रहा है, जिसकी वजह से FIIs जो है भारत में सेलिंग कर रहे हैं और जो यूएस है वहां पे निवेश कर रहे हैं. ऐसे ही बाकी देशों में, यूके में, यूरोप में भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही हैं, जिसका सीधा असर FIIs के सेलिंग पे पड़ रहा है. जो अभी सपोर्ट कर रहा है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं और खास तौर पे जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है और जो ग्रोथ है इकोनॉमी की, जो अभी भी प्रोजेक्ट की गई है आरबीआई से 6.9% पे, वो अभी भी सपोर्ट कर रही है इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट्स को. Joining us next is Gautam from Delhi. Good evening and put your question quick. Sure, thank you. Basically, Yamini ji, my question is tax regime 1, tax regime 2, old and new जो regimes है, एक salaried employees के लिए कौन सी tax regime after which salary level, मतलब what is the threshold for deciding कि I should move from tax regime 1 to tax regime 2 as being a salaried employee. Second thing is that the budget is going to come for the next fiscal year. Do you think or do you anticipate any tax date revision in terms of? Okay. Right. Your savings will decide whether tax regime 1 or tax regime 2 will help you. Second, I don't really see much changes in the tax because they've already rationalized it for corporates and individuals. Right, and let's take a look at the US markets as well. Wall Street witnessed modest gains yesterday, marking the end of a volatile week in which economic data and corporate earnings guidance hinted at softening demand. The Dow Jones Industrial Average added 0.1%, the S&P 500 gained 0.3%, and the Nasdaq Composite Index surged 1%. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर यामिनी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. जी धन्यवाद. And before we close, a quick look at the top stories. Domestic stocks plunged more than 2% during the week ended yesterday. Sensex closes below the 59,500 mark. Nifty finishes near 17,600 level. And US stocks witnessed modest gains. इसके साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra, the program that gives you a complete roundup of all that's happening in the world of business, economics and the stock market. But for now, from the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye and have a wonderful weekend.